حوالے سے، اس کے وسیلے سے میں ایک تقویت افزا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے جب یسوع مسیح ناصری صلیبی دکھ سہنے کے بعد، ہر مصیبت، ہر بدکاری کو اپنے بدن پر لینے کے بعد مر گئے، دفن ہوا، اور جب تیسرے دن جی اٹھا قدرت کے ساتھ، اس کے بعد یسوع مسیح کے شاگرد ابتدائی کلیسیا کو شروع کرنے والے، ان کے لیڈرز، وہ یہودیوں کے ڈر سے بند تھے۔ بائی دا وے میں بیان کرتا چلوں کہ جب کبھی زندگیوں میں، گھروں میں، معاشرے میں امیدوں کے اور ہر طرح کے سورسز کے دروازے بند ہوں، تو خیال کرنا، سیکھنا اس بات اور غور کیجیے گا اس بات پر کہ خدا آپ کی زندگی میں ایک تربیت، ایک مرمت، ایک تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اور جب کبھی وہ دروازے کھلیں اور آپ باہر نکلیں تو آپ کے وسیلے سے خدا دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ آج اس واقعے میں، اس حوالے میں جو ہم نے پڑھا ہے، بالکل کچھ اسی طرح کا ہوا ہے۔ آج پوری دنیا کے دروازے، حکومتوں کے، ملکوں کے، آج معاشیت کے دروازے، کاروبار کے دروازے، آج عبادت گاہوں کے دروازے کرونا وائرس کی وجہ سے بند ہیں، اور کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن، اور کوئی امید، کوئی تسلی، کوئی شفا کا پیغام، کوئی بھی اس بیماری کا توڑ نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، سن لیجیے گا، ہر ایک بشر جو میری آواز کو سن رہا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، دروازے گو کے بند ہیں، حالات ساتھ نہیں دے رہے، کاروبار بند، حکومتوں کے دل دہل چکے ہیں، امیدیں جاتی رہی ہیں، اندھیرے ہیں، ناامیدیاں ہیں، دہشتیں ہیں، ڈر ہے، خوف ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو آپ کے بند دروازوں میں گھس کر، آپ کی نا امیدی کے بند دروازوں میں گھس کر، آپ کے ڈر اور خوف کے کمرے میں آ کر، جہاں آپ ڈرے سہمے، آپ موت کے ڈر سے، آپ کسی اور ڈر سے سہمے ہیں، نا امید ہیں، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ایک شخص ہے جس کا نام یسوع ناصری ہے، جو آپ کی نا امیدیوں میں، بیماری میں شفا، جو موت میں زندگی ہے، جو آپ کی ہر طرح کے خوف میں دلیری اور روشنی کا پیغام ہے۔ یسوع مسیح آپ کی زندگی میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے معاشرے میں، ملکوں میں، سلطنتوں میں، بادشاہوں میں، گداگروں میں، فقیروں میں، خادموں میں، کلیسیا میں، غیر قوموں میں، یسوع ناصری ایک جلالی کام کرنا چاہتا ہے، تاکہ جب آپ اپنے لاک ڈاؤن سے، آپ اپنے گھروں سے، بند دروازوں سے ایک جلالی مکاشفہ لے کر نکلیں تو دنیا کو شاگردوں کی طرح پوری دنیا کو مغلوب کریں، تاکہ خدا کی انجیل، مسیح کی انجیل اور صلیب کا مکاشفہ، نجات کا مکاشفہ، پاک روح کی آگ، پاک روح کے کام دنیا میں نظر آئیں۔ ہیلیلویا۔ اور اس واقعے میں سے میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، لکھا ہے یہودیوں کے ڈر سے دروازے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا، شکر خدا کا۔ دنیا کے دروازے بند، سورسز بند ہیں، کاروبار بند، ہر ایک گھر، ہر ایک بھائی بہن، بیوی، شوہر، بچوں کے لیے پریشان، ماں باپ بچوں کے لیے پریشان، وہ حیران ہیں، روزی روٹی، کاروبار، آج بھوک، افلاس، مری دنیا میں نظر آتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ایک امید کا چشمہ، اطمینان کا چشمہ یسوع ناصری آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو زندہ کرنے کے لیے، آپ کی امیدیں پوری کرنے کے لیے، آپ کی شفا کے لیے، آپ کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے، آپ کے آسرے کے لیے، آپ کو چٹان کی طرح کا ایمان دینے کے لیے وہ جی اٹھا ہے، اور وہ آج میرے اور آپ کے بلکہ ہر ایک اس کے ساتھ ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ کی اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں، آپ کی نا امیدی کے اندھیروں میں، بند کمروں میں، سب سے پہلی بات لکھا ہے، خدا یسوع نے کہا تمہاری سلامتی ہو۔
मसीह की सलामती, मसीह का इत्मीनान, मसीह का जो पीस है, पीस ऑफ गॉड, ये हमारे साथ है। हौसला खुदा का। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हौसला दिया कि घबराओ नहीं, सलामती रखो, तुम सलामत रहोगे। मैं पहला पैगाम ये देना चाहता हूँ इस विरत में से, इस पैसेज में से, कि मसीह का इत्मीनान हमारे लिए काफी है। यीशु मसीह ने खुद कहा यूहन्ना की इंजील में, उसे कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें लिए देता हूँ। अनाजील अरबा में ये पैगाम वाज़ेह है, मैं वैसे इत्मीनान वैसे नहीं देता जैसे दुनिया देती है, बल्कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। ये बोझ के तले दबे हुए लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और उसे फरमाते कि खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है वो आपको भरेगा, आपको भरपूरी देगा, आपको हौसला देगा। और यूहन्ना ही की इंजील में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया तुम्हारा दिल ना घबराए। और इस लफ्ज का मतलब तुम्हारा दिल ना घबराए। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान, और मैं बयान करना चाहता हूँ यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में से, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखिएगा, तुम्हारे हौसले, तुम्हारी उम्मीदें बरकरार रहेंगी, जिंदा रहेंगी और पूरी हो जाएंगी। आमीन। मैं चाहता हूं खुदा आपको ईमान की, दिलेरी की, सलामती की ऐसी स्पिरिट से, ऐसे मुकाशफे से, ऐसी रोशनी से भरे कि हमारी जिंदगियों में इस हालात में भी दुनिया डरी हुई है, हम हौसला रखें कि खुदावंद बचाने की कुदरत रखता है। दूसरा पैगाम, दूसरा नुक्ता मेरा आप सबों के लिए इस हवाले में से, यीशु मसीह ने सलामती बख्शी। नंबर 2, और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। दूसरा नुक्ता, यीशु मसीह का लहू। यशायाह नबी के सीफे में लिखा है, और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। ये बीमारी, कोरोना वायरस या कोई और भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के लहू के आगे कुछ नहीं है। उसने अपने हाथ, अपनी पसली, अपने जख्मों को दिखाया। मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे सामूहिक, मेरे सुनने वालों, सुन लीजिएगा और अपने कानों को, ज़हनों को, अपनी रूहों को जिंदा करके, जगाकर, खोलकर इस बात को अपने अंदर रख लीजिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह के मार खाने से हमें शिफा मिलती है। वो कि आज दुनिया भर में कोई भी कोरोना वायरस का तोड़, कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन नहीं मिल रही है, लेकिन यीशु का लहू है जो आपको, आपके घरानों को, हुकूमतों को, बादशाहों को, फकीरों को, हर एक बशर को अपनी कुदरत से शिफा, जिंदगी, जलाल, रोशनी बख्श सकता है, उम्मीद दे सकता है। यीशु मसीह का लहू एक छोटा सा कोरोना वायरस, एक छोटा सा जरा है जिसने पूरी दुनिया को उठा रखा है। मैं पैगाम देना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह का लहू, बरे का खून आपके घरों, आपकी जिंदगियों पर है, आपके अमलाक पर है, तो आइए अपने आप को दलेरी के साथ ये कहना सिखाएं कि यीशु का लहू मुझे तमाम गुनाहों से पाक करता है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। शागिर्द जो डरे हुए थे, सबसे पहला पैगाम यीशु ने दिया, तुम्हारी सलामती, हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने कहा दुनिया का आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और दूसरा पैगाम कि यीशु ने अपने लहू का मुकाशफा, अपने कोड़ों, अपने कांटों, अपने कील, अपने पसली, अपने ताज का मुकाशफा उसे बख्शा, सलीब का मुकाशफा दिया दुनिया को, शागिर्दों को, कलीसिया को। वो बताना चाहता है कि उसने मार इसलिए खाई ताकि आप शिफा पाए, वो इसलिए मर गया ताकि आप जिंदा रहें, वो इसलिए घायल किया गया ताकि हम जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, तीसरी और आखिरी बात मेरे इस पैगाम की लिखा है 22 में आती, और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूहुल कुद्स लो। आज डरी, सहमी, घबराई हुई दुनिया को मैं पैगाम ये देना चाहता हूं, मसीह का इत्मीनान नंबर 1, यीशु का लहू नंबर 2, और खुदाए रूहुल कुद्स, खुदा का पाक रूह जिसकी बाबत खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा
मैं दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा और दुनिया उसको नहीं जानती, उससे नहीं वाकिफ। लेकिन मेरे बहन मेरे भाई, अगर रूहुल कुद्स की मामूरी, रूहुल कुद्स की हजूरी, रूहुल कुद्स की आग, रूहुल कुद्स की नेमतें, रूहुल कुद्स के फल किसी की जिंदगी में है, तो ये सलामती उसकी जिंदगी में है, यीशु के लहू का मुकाशफा उसकी जिंदगी में है, और रूहुल कुद्स के जलाली और मौजज़ाना काम उसकी जिंदगी में है। और आखिरी आयत जो कि बड़ी एक चैलेंज वाली आयत भी है, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए। मैं पैगाम देना चाहता हूँ सबसे पहले अपने तमाम खुदा भाइयों को, मसीही लीडर्स को, कलीसिया को, कि कलीसिया आज अगर रूहानी एतबार में पूरी दुनिया के लिए फ्रंट लाइन पे खड़ी होकर, घुटनों के बल होकर, मसीह की सलामती से, यीशु के लहू से और पाक रूह की आग से भरे हुए फ्रंट लाइन पर खड़े होकर, घुटनों के बल होकर तौबा करके अपने आसमानी बाप को पुकारेंगे, तो वो सुनेगा और निजात, शिफा, बरकत, खुशी, बहाली, उम्मीद दुनिया को बख्शेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ मेरे इस छोटे से पैगाम के वसीले से मेरे सब भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे। लेकिन ये 3 बातें इस विरत में से अपने लिए याद रखना। यीशु मसीह नासरी वो जी उठा है, उसने जी उठने के बाद मुझे, आपको, कलीसिया को, दुनिया को ये हौसला दिया है, तुम्हारी सलामती हो। और उसने अपने लहू का मुकाशफा बार बार दिखाया है। काश आज कोई उसके जख्मों को जान ले, आज कोई इसकी कदर करे, आज कोई इसकी सलीब को पहचान ले। और पौलुस रसूल फरमाते हैं कुरिन्थियों के पहले खत में, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कलाम अक़दस का, यीशु के लहू का, कि यीशु का लहू कोरोना के लिए काफी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बाइबल मुकद्दस की आयत कोरोना के लिए काफी नहीं है। मैं सहमत हूँ आपके ख्यालात से कि गोके ये कोरोना वायरस वो वाला वायरस नहीं है, ये सिचुएशन वो सिचुएशन नहीं है जिनकी बाबत वो आयत लिखी है। ये हालात, ये दिन, ये वक्त, ये सदी, ये साल वो वाले नहीं है, लेकिन खुदा वो कल और आज और अबद तक यकसा है। जिसने कल बचाया वो आज भी बचा सकता और अबद तक बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उसका वादा है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे अजीजों, मेरी दिली दुआ है, मेरे उम्मीद भरे अल्फाज आप सबों के लिए खुदा के सामने है कि खुदा इस कलाम के वसीले आपकी रूहों को ताजा करे, जिंदा करे, ताकि आप मसीह के इत्मीनान से भर जाएं, ताकि आप यीशु के लहू की कुदरत से वाकिफ हो जाएं और दलेरी के साथ रूहुल कुद्स से भरे हुए इस दुआ को और इस पैगाम को और इस मुकाशफे को लेकर सारी दुनिया की निजात का बायस बने। जैसे शागिर्द सिर्फ 120 की जमात जो कि बाराखाना पर दुआ कर रहे थे, जैसे ही रूहुल कुद्स से भर गए, ईद पेंटिकोस्त के दिन जब रूहुल कुद्स पूरी आबोताब के साथ सारे का सारा शागिर्दों पर नाजिल हुआ, उसके बाद लिखा है कलाम अक़दस में, अमाल की किताब में, कि इन शागिर्दों ने, इन 12 शागिर्दों ने जब कलाम सुनाया तो सारी दुनिया को मगलूब किया ईमान के वसीले से, ईमान के वसीले से। मैं चाहता हूँ कि जितनों ने इसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद पर देखा। जब वो मेरे फर्जंद कहता है, हम फर्जंद कहता है, हम खुदा के खादिम हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, तो आइए मेरे बहन मेरे भाइयों, इस कलाम की कुदरत से, मसीह की सलामती से और यीशु के लहू से और पाक रूह की आंख से भरे हुए आइए दुनिया के लिए निजात का बायस बने, इत्मीनान का बायस बने, तरक्की का बायस बने, शिफा का बायस बने। और दुनिया जिसके पास रूहुल कुद्स का मुकाशफा नहीं, यीशु के लहू का मुकाशफा नहीं, खुदा का इत्मीनान नहीं है, ये बोल्डनेस नहीं है, ये दलेरी नहीं है, आइए हम रूहानी एतबार में दुनिया को ये फीड करें, दुनिया को खुराक दें कि वो मसीह में इत्मीनान रखें, हौसला रखें और
पापों से भरे और यीशु के लहू से खुद को ढांपे रखें, ताकि खुदा हमारे वसीले से, कलीसिया के वसीले से सारी दुनिया में यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। मेरे इस पैगाम के वसीले से, लफ्जों के वसीले से मेरी दुआ है, खुदा सबको बड़ी बरकत अता करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।